Hello, welcome back to my channel, Beautiful Souls. Today I'm going to talk about deep love because I know that I have promised to talk about on emotions and karma, but the thing is that talking about that topic will be a very big, like it will be not so shorter video. It won't be a shorter video. So that's why I'm going to talk about deep love today. In my previous video, I have talked about unconditional love and conditional love. Okay, so now we will continue with the deep love. What is deep love? Okay, and I talked about unconditional love and conditional love, but now today we will talk on the topic of deep love. After talking about the deep love, I'm going to tell you about my short story on twin flame journey. On my twin flame journey, where what has happened, how my journey started with Jungkook and how it all happened, I will tell you that all. But first, rather than focusing on it, I want to share you about the deep love because it's very important. So let's start. Okay. And at the end, I'm going to also tell you about when this video will be over. I'm also planning to tell you about the twin flame connection, which I have said in previous videos that I will talk about the twin flame connection as well. But from my experience, okay, on my based experience, because I don't want to be so much professional, because I don't want to mislead anyone here. I just want to be honest, and that's why I would like to share my experience with you rather than just going with the informations, grabbing informations like how the other people do. Okay, but I'm not that kind of person, so I just want to I just want to explain from my own, on my own based experience. So let's start with the deep love. Today I'm going to talk in English, not in Hindi. So because some people are also watching my videos and they are not understanding much Hindi, so I'm so sorry about that. Translation is there, but the translation is not working in the English manner because I don't know why. I need to see about that setting, so I will try my best to look at that setting and will be let you know. Alright, so let's move to the deep love. What is deep love? Deep love can be amongst anyone. It can be among anyone because love is love. Love can be between families, brother and sister, and colleagues, partners. Partners is different because that's what it is. But love is not only about relationship or partnership. Okay, love is about everything. And when it comes to love, there is no negativity, there is no ego, there is no possession, there is no giving up, there is no negative talks, or like you say now, love is not being about egoistic, like having bad thoughts, like having bad energy, like being negativity, giving love to others but you're not giving love to yourself, and at the same time you're giving love but also you're not following that steps which you should follow. Okay, so in that moment, love is something that everyone can have, but love is something that not everyone can have. Why I say that? Because love is very true, it's very pure, it's very beautiful, it's very, very graceful, peaceful, and that's why people are not believing in love these days, not even in deep love. So that's why what I'm going to talk about is, it's on deep love topic. When you love someone, you love very deeply, right? But sometimes it's an illusion. We stay in an illusion.
we don't even recognize that why it's happening. So you question yourself that is this love or is this an attraction? Okay, then you question yourself, I don't think so, I'm in love, maybe it's just an attraction. Or maybe you convince yourself that you are in love, but whether you are not sure, because you're not sure that you are in love, but the fact is that it's an attraction. Okay, so deep love, my people, I want to talk this topic on Hindi as well. So after speaking in after speaking in English, I'm going to talk in Hindi as well, that what love is. Okay, what is a deep love? Okay, so here I'm going to say is that when you love someone very deeply, it can be your father, it can be your mother, it can be your sister, it can be your brother, it can be your colleagues, it can be your partner, it can be your friend, especially your friends, your best friend, yes. Because when you love without any conditions, right? And because even though you don't know the meaning of unconditional love, or even though you don't know the meaning of what is a deep love, in that moment you recognize that what is the actual deep love. Okay, because it was same for me when I started to release the emotions, when I started to release the anger, when I started to release the obsession, attachment, and very negativity when I was holding for my twin flame, when I was so much attached, so much obsessed, so much into holding and clingy. At first this is how it is, right? So much clingy. And then I started to realize that no, this is wrong, because my twin flame started to run the moment I started to chase him in this way. This is what it is. When you chase your partner or whoever it is, that person will run away. So from this experience only I got to know that love is not about chasing, love is not about obsession, love is not about possession, love is not about being negative, love is not about being possessive. In love, these things doesn't come at all. It doesn't involve at all. Okay? So this is how I started to love my twin flame in a very unconditional manner. And now that's why today I'm here to share you from my experience only. I will be very happy that if you grow with me, guys, I will be so happy. Okay, sorry for my bad English. I know my English is not so bad, I'm not so much good in this, but still I'm trying to communicate with you, and that's really enough for me. And I'm looking forward to learn more English and enhance my English even more by learning new things, new words, which is my habit. Okay, it's my passion to learn new things. I would love to know more new things, especially in this twin flame journey and in my life as well. So yeah, I will talk in Hindi now. Okay, because in Hindi I feel more comfortable to talk in Hindi, and it's very simple to explain in a proper way. Okay, alright. तो गहरा प्यार क्या होता है? गहरा प्यार तो हर सदस्य में होता है ना? हम सबसे प्यार करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, बहन भाई से प्यार करते हैं, हमारे रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, हमारे फ्रेंड से प्यार करते हैं, हमारे कलीग से प्यार करते हैं, हमारे नेबर से भी प्यार करते हैं। प्यार हर तरफ होता है, प्यार सब में होता है। बस इतना है कि उस प्यार का मीनिंग, प्यार का गहरा जो होता है ना, उसका जो डीप गहराई जो होती है ना प्यार की, उसे कोई समझ नहीं पाता, कोई नहीं। और इसलिए मैं आज आपको बताने आई हूँ कि गहरा प्यार होता है क्या। जब आप किसी को गहरा प्यार देते हो,
वो सिर्फ एक पार्टनर के लिए नहीं होता, वो हमारे सदस्य में, और जिस तरह से मैंने कहा मॉम डैड एंड ऑल, हम इन्हें भी उतना ही गहरा प्यार दे सकते हैं बिना कोई रिसीव किए, बिना कोई मांग के। ठीक है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। सपोज़ अब मेरी डैड है और मेरी मॉम है, वो दोनों बिल्कुल भी, ठीक है, नार्सिसिस्ट है और उनको समझ नहीं आता कि क्या बोल रही हूँ। वो लोग हमेशा मुझे बस ब्लेम करेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास समझदारी है, तो मैं उनसे ट्रिगर ना हो के मैं उनको मैं और ज़्यादा प्यार दूंगी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, आई विल गिव देम लव, आई विल चेरिश देम। ठीक है, मुझे एक टॉपिक पे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। शायद मैं इसी टॉपिक के बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है टॉक्सिक फैमिली। यस, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है और है अभी भी। सो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो भी ब्राउन फैमिली से है, जो भी टॉक्सिक फैमिली से है, वो क्या करे और क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, मैं आपको बताती हूँ, बट आफ्टर दिस टॉपिक। ठीक है, सो लेट्स गो। तो जैसे मैंने कहा कि चाहे फिर वो सामने वाला अच्छा हो या फिर अच्छी हो, या फिर भले ही उन्हें समझ में ना आए, फिर भी हम उन्हें प्यार देते हैं और देंगे ही, क्योंकि हमारे में इतना गहरा प्यार है, इतना डीप लव है, इतना अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यार वो सामने वाला मुझे प्यार नहीं दे रहा है तो मैं क्यों प्यार दूँ उसे, राइट। हाँ, आजकल ऐसा होता है कि अगर वो मुझे प्यार नहीं दे रही है, मैं भी नहीं दूंगा, शी डजंट डिजर्व इट। लेकिन दूसरों को प्यार देने से आप कम नहीं हो जाते, भले फिर वो सामने वाला इंसान कितना भी आपसे नफरत क्यों ना करे। एक ना एक दिन उनके दिल में वो प्यार जग ही जाएगा, जब वो अगर आपकी मन की श्रद्धा जो है ना वो सच हो, तब श्रद्धा से काम लो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ होता है कि इतना प्यार देने के बाद भी सामने वाला इंसान कभी बदलता नहीं है, चाहे फिर आप उसको कितना भी क्यों ना समझा लो, वो नहीं समझते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे टाइम पे आप बिल्कुल शांत रहो, प्यार देते जाओ, कोई बात नहीं, प्यार देते जाओ। अगर आपका मन नहीं कर रहा है प्यार देने का, कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है आपको किसी से भी, तो मत रखो, कोई बात नहीं, आप फोर्स मत करना बस अपने आप को। ठीक है, बट अगर सच में मन करता है कि प्यार देना है, अच्छा होगा, प्यार देना अच्छा होगा, तो आप प्यार दो उन्हें, आप उनकी हेल्प करो, मदद करो, पूछो कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ना अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स या फिर जो भी है, वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें प्यार दे। कुछ होते हैं ना जिनके पास जिसको प्यार नहीं मिला ना, जिनके पास प्यार नहीं है, वो लोग अंदर से सीख करते हैं उस प्यार को, उस लव को। तो आप वो लव दीजिए उन्हें, ठीक है, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई हेजिटेशन के। कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार देने से वो चले जाएंगे, या फिर वो उन्हें ईगो आ जाएगा, या फिर वो बहुत घमंडी हो जाएंगे और वो चले जाएंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जाने दो। सब हमारे प्यार को नहीं समझते, ठीक है। Not everyone can understand what our deep understanding and our love is for them. कोई नहीं समझता। तो ऐसे जनरेशन में आपको ऐसे ही रहना होगा। सामने वाला गाली ही क्यों ना दे, आपको इंसल्ट करे, आप शांत बैठो, कुछ भी मत बोलो,
आपको नीचा दिखाए, आपको बोले कि आप अच्छे नहीं हो, आप बिल्कुल गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना कुछ जिनके पास बहुत ज़्यादा ईगो होता है, एंगरनेस होता है, जेलसी होता है, वो लोग ही ऐसी बातें करते हैं। अगर वो अंदर से टूटे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आप पर निकालेंगे। और ज़्यादातर तो ऐसे फैमिली में ही होता है, राइट? या फिर बहन भाई में, है ना? कभी आपने देखा है कि चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन के बीच में इतना ज़्यादा इंटेंस फाइट हुआ है या फिर कुछ भी? नहीं होता होगा, लेकिन शायद से। लेकिन जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं ना, हमारे जो सक्का भाई या फिर सगी बहन, इनके साथ हमारा इतना ही गहरा प्यार होता है, उतना ही गहरा झगड़ा भी होता है, ठीक है? और उतना ही गहरा प्यार हमारे माँ बाप के बीच, और उतना ही गहरा झगड़ा भी होता है। आप तो समझदार हो, आप समझते हो, आपको पता है कि प्यार क्या है, आपको पता है कि आगे वाले से बहस करने से कुछ नहीं होगा। तो तब भी आपको समझना चाहिए कि डीप लव क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे खुद से, ठीक है? तो ये था एक गहरा प्यार। गहरे प्यार में, जैसे कि डीप लव में, ऐसा नहीं है कि आप जो भी मिले आप उन्हें प्यार देते जाओ, अरे ये लो प्यार ले लो, अरे ये लो प्यार ले लो। नहीं, टेक माई डीप लव, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। अगर आप मैच्योर हो, अगर आप समझदार हो, आपको पता है कहाँ कितना प्यार देना है, कहाँ कितना नहीं देना है, आपको पता है सब कुछ, ठीक है? किस समय प्यार देना है, किस समय नहीं देना है, आपको पता है, राइट? अगर आप मैच्योर हो तो। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग ना किसी को इतना प्यार दे बैठते हैं कि वो सामने वाला इंसान हमारे प्यार से ट्रिगर होकर चला जाता है, और फिर हम ही अपने आप को पूछते हैं कि क्या हम कम थे कहीं, या फिर देने से ही प्रॉब्लम हो गया। क्या गलती थी मेरी जो वो सामने वाला प्यार देने से ही भाग गया? क्यों ऐसा हुआ? क्या ऐसा हो गया जो मैंने इतना प्यार दिया और वो सामने वाला चला गया? ऐसे समय में आप अपने आप को दोष देना बंद करो। Stop blaming yourself just because you are giving love to others. That doesn't mean you are a bad person. That doesn't mean you are the worst person. आप इनसिक्योरिटी में चले जाते हो, आपको इनसिक्योर फील होने लग जाता है कि कहाँ पे कम थे आप, क्या किया, क्यों किया। सामने वाला इंसान आपको बोलता है कि बेवकूफ़ हो, समझ में नहीं आता है, आप बच्चे हो, बच्चे वाला दिमाग बना देते हैं ना, आपकी इंसल्ट करते हैं, जबकि सिर्फ आपने एक प्यार दिया। ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि वो कभी वो प्यार डिज़र्व करते ही नहीं थे। उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, तभी तो वो ट्रिगर हो गए ना। जो सामने वाला इंसान आपके प्यार को समझ गया, वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा, कभी नहीं, बल्कि आपको वो प्यार देगा, आपकी हेल्प भी करेगा, और आपसे एक घट रिश्ता बांधेगा, एक घनिष्ठ बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग सा रिश्ता आपके साथ वो बांधेंगे।
वो चाहे फिर फ्रेंडशिप क्यों ना हो, वो चाहे आपके कलीग्स या फिर नेबर्स या फिर कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि कभी कभी कोई स्ट्रेंजर्स को हेल्प चाहिए होती है, हम उनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सामने वाला है उसके इंटेंशंस कुछ और होते हैं और आपके इंटेंशंस डिफरेंट होते हैं, और वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहते हैं और वो आपको पता नहीं होता। आपको बाद में पता चलता है जब वो बस काम करके जब अपना खुद का काम हो गया वो चले जाते हैं। ऐसा बहुत चल रहा है इस दुनिया में। ऐसे सिचुएशन में भी आप चुप रहो, कुछ मत बोलो। कर्मा उनके पास आएगा, आपके पास नहीं। ठीक है? आप ना डीप लव में गिवर बन जाते हो कि जो भी सामने वाला है आप उसे प्यार देते हो, उनकी मदद करते हो, आप उन्हें चेरिश करते हो। आप कभी उन्हें नहीं बोलते कि आप बुरे दिखते हो। डीप लव में कभी किसी का इंसल्ट नहीं होता। जब आप खुद प्यार बन जाते हो, जब आप खुद लव बन जाते हो, एक डीप लव बन जाते हो, तब आप एक डिफरेंट पर्सन होते हो। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कभी किसी ने ना देखा हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये प्यार सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं होता, ये प्यार सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं होता। ट्विन फ्लेम की बात तो यहाँ पे आती ही नहीं है। पहली बात तो ट्विन फ्लेम में भी आपको प्यार देना है सबको, वो चाहे फिर सामने वाला इंसान कैसा भी क्यों ना हो। जब तक आप खुद प्यार नहीं बन जाते, आप किसी और को प्यार नहीं दे सकते, और ना ही आपकी ट्विन फ्लेम को आप प्यार दे सकते हो। वैसे ही प्यार में कोई ऐसा नहीं है कि बस ट्विन फ्लेम हो तो ही प्यार करो, नहीं। आप नॉर्मल इंसान रह के भी आप लोगों को प्यार दे सकते हो, बस इतना काफ़ी है। तब जाके आपको एक सुकून महसूस होगा, आपको अंदर से एक काम फील होगा, आपको लाइट फील होगा जब आप लोगों की मदद करोगे, प्यार करोगे उनसे, आप उनको समझाओगे, आप उनका साथ दोगे, भले फिर वो आपका साथ ही क्यों ना दे। आप ऐसे इंसान बनो, देखो बन के क्या होता है। जिन्होंने आपको इतना बुरा कहा, जिन लोगों ने आपको समझा नहीं, सुना नहीं, प्यार को आपके समझाने, बात को आपके समझाने, वो बाद में समझ जाएंगे और आपको आके वो सॉरी बोलेंगे। ये बात आप याद रखना, ये हकीकत है, झूठ नहीं। आपको सबसे ज़्यादा प्यार देने वाला कौन होता है बताओ? सपोज एक एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हो और आप खुद प्यार देने वाला कोई भी नहीं है और आपको प्यार के बारे में पता तक नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक फील करते हो कि मुझे कोई तो चाहिए, मुझे कोई तो चाहिए, मुझे कोई तो प्यार दे दो। आप फिर भी प्यार का वर्ड लेते हो, राइट? आप फिर भी बोलते हो कि मुझे लव चाहिए, मुझे लोगों का साथ चाहिए, एक ही पर्सन काफ़ी है मेरे लिए, राइट? और तब कोई नहीं होता, लेकिन हमारा खुदा होता है, हमारा भगवान होता है, हमारे यूनिवर्स होते हैं। वो ऊपर वाला ही होता है जो हमें इतना प्यार दे सकता है और कोई नहीं। ऊपर वाला आपको इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है, भले कितनी भी गलती क्यों ना कर दो, वो आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। He loves you. He loves you so much. हमारी माता रानी जो मदर गॉड है, वो आपसे बहुत प्यार करती है।
सारे भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भगवान का प्यार का तुलना किससे भी नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप समझो कि भगवान प्यार कितना करते हैं, तभी वो आपके लिए एक ऐसा इंसान ढूंढ निकालते हैं जो आपको सही रास्ते पे ले आए, आपको सही प्यार दे सके, आपको प्यार सिखा सके, आपको लेसन सिखा सके। वो आपके एक अलग टीचर बन के आते हैं, वो आपको एक गाइडेंस देने आते हैं, राइट। और फिर जैसे उनका काम हो गया, वो जाते नहीं, वो आपके साथ रहते हैं। अपने वाले कभी जाते नहीं हैं, जो हमारे कभी नहीं, जो अपने कभी थे ही नहीं, वो कभी नहीं रहते, वो चले जाते हैं। Our people never leaves, but they stays forever. And the people who are never ours, they will leave you forever, no matter what. ये एक ट्रूथ है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है जो बहुत कम लोग पहचानते हैं। अब आप ही देख लो, भगवान कितना प्यार करता है ना हमसे। हम उन्हें इतना बुरा भला बोलते हैं, गुस्सा आया तो हमको, मतलब गुस्से में हमारा वश ही नहीं होता है, हम बस बोलते ही जाते हैं, फिर भी वो हंसते और प्यार देते हैं हमें। वो बोलते हैं कि आई फॉरगिव यू। लेकिन उसी तरह से जब आप खुद प्यार बन जाते हो ना, जब आप सामने वालों को प्यार देते हो, वो भले फिर आपको कितना बुरा भला बोल दे, आप फिर भी उन्हें प्यार दोगे और हंसते रहोगे। जिस तरह से भगवान आपको प्यार देते हैं, बिल्कुल वैसे। अगर आप भगवान के भक्त हो तो आप समझते हो। लेकिन आजकल होता है ना कि भक्त में ही एक वॉर चल रहा है कि इसकी भक्ति मत करो, उनकी भक्ति करो, इस भगवान की भक्ति मत करो, वो दूसरे भक्ति करो, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भगवान से कंपैरिजन कभी मत करना, कभी मत करना। जो भगवान से कंपैरिजन करता है वो कभी सुखी नहीं रहता, कभी नहीं। हाँ, अगर वो अनजान में कह रहा है कि हाँ मुझे ये भगवान पसंद नहीं, मुझे ये भगवान पसंद है, मुझे इनकी भक्ति अच्छी लगती, मुझे भगवान की भक्ति नहीं आती, अगर वो नादान है, समझ में नहीं आता, तो भगवान उसे माफ़ कर देंगे और उसे वो सिखाएंगे कि एक्चुअली रियल भक्ति होती है क्या, और वो प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार जो सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, लेकिन बाकियों में, हर लोगों में बांटा जाता है। और इसलिए मैं आज आप सबसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जो लोग मुझसे नफरत करते, मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। मेरे भगवान से प्यार करती हूँ, मेरे ट्विन फ्लेम से प्यार करती हूँ, मेरे भाई बहन से प्यार करती हूँ, मेरे फ्रेंड से प्यार करती हूँ, मेरी जो स्पिरिचुअल सिस्टर है मैं उनसे प्यार करती हूँ, मेरी जो स्पिरिचुअल मदर है, फादर है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप से मैं बहुत प्यार करती हूँ, भले मैं उनको दिखाऊं या ना दिखाऊं। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। भगवान सबसे प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि उनको कितना हेट मिलता है, कितना कुछ बुरा बोला जाता है, उनको उन पे कभी बिलीव नहीं किया जाता। उनको यही लगता है कि वो कभी उनकी मदद नहीं करते, हेल्प नहीं करते, प्यार नहीं करते, समझते नहीं हैं। फिर भी वो जो एक पर्सन है जो ऐसे खोया हुआ है,
उसकी मदद करते हैं ना। सबसे पहले अगर सबसे बड़ा होगा ना, तो भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, ना ही कोई सेलिब्रिटी बड़ा है इस भगवान के सामने। ना मैं बड़ी हूँ, ना कोई भी बड़ा है। भगवान के सामने कोई नहीं टिक सकता, ना कि शैतान, ना ही नेगेटिविटीज, ना ही डिजीज। हमें अच्छा करने वाला भी भगवान ही होता है और कोई नहीं। अच्छा सिखाने वाला भगवान होता है। और जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे पर्सन आते जो हमको बस यूज़ करते हैं और हमारा बस सच जानने की कोशिश करते हैं, वो आते और आपको सिखाते कि कभी भी सामने वाले इंसान पे बिना समझे ट्रस्ट मत करना। वो आपको लेसन सिखाने आते हैं। अगर आप नहीं समझते हो, वो वापस से दोहराएगा, फिर से दोहराएगा आपको सिखाने के लिए। अब मैंने बहुत गलती की है क्योंकि मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी करती हूँ और इसी ट्रस्ट के कारण मैंने बहुत लेसन सीखे हैं और आज भी सीख रही हूँ। मैं सीखना चाहूँगी, मैं कभी नहीं रुकूँगी। सीखना तो मेरा पैशन है और मैं सीखूँगी। तो जब डीप लव की बात आए, आप बिल्कुल भी घबराना मत प्यार देने से लोगों को। प्यार बांटने से दिल में प्यार इतना बढ़ता है ना, भगवान आपका प्राउड फील करते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देगा, बट ही विल लिटरली शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑफ फ्लावर ऑन यू। यू नो दैट। आप भगवान के इंसान हो। यू आर गॉड्स पर्सन, यू आर गॉड्स चाइल्ड। और भगवान के जो पर्सन होते हैं, वो इंसान होते हैं ना, वो भले फिर कितनी भी गलती क्यों ना करे, वो एक ना एक दिन समझ ही जाता है। राइट? सो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है इस टॉपिक पे। मुझे जो कहना था इम्पोर्टेंस डीप लव की, मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो मुझे अब टॉक्सिक फैमिली से रिलेटेड बात करनी है आपसे, क्योंकि मोस्टली आप लोग इंडियन फैमिली से भी हो और कुछ लोग होते हैं जो टॉक्सिक फैमिली से भी रिलेटेड करते, भले फिर वो इंडियन ही क्यों ना हो। सो आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट गाइज, आई एम हियर, डोंट वरी। मैं हूँ आपको यहाँ पे बताने के लिए कि क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। मैं भी ढूंढ रही थी, परसों तरसों ढूंढ रही थी कि क्या करना है ऐसे टॉक्सिक फैमिलीज़ का, लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अब मुझे समझ में आया, मैंने खुद से हल निकाला कि कैसे इन सबको फॉलो करना है, कैसे संभालना है और कैसे ये जो टॉक्सिसिटी है ना हमारी फैमिली में, उसे कैसे बदलना है। इसका हल मैं निकाल चुकी हूँ और यही मैं आपसे शेयर करने आई हूँ आज। ठीक है? और मुझे पता नहीं कि मैं आपको मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको बता पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं बना सकती। एडिटिंग में मुझे ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है? सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप टॉक्सिक फैमिलीज़ के कुछ पॉइंट्स बताऊँगी कि कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे सिचुएशन में आपको हैंडल करना है जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते। ठीक है? मैं सच बात बोलूँ तो अभी तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हुई हूँ, बिकॉज़ मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत चल रहे हैं। बीमार मैं गिरी थी बीच में,
तो मुझे अभी भी वीकनेस है, लेकिन अभी जिस तरह से मैं प्रेयर कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, वैसे वैसे मैं ठीक हो रही हूँ और वैसे ही मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। मैंने यही कहा है कि आप मेरे साथ ग्रो करो, भले फिर मैं कैसे भी हालत में क्यों ना हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ चल रहे हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। सो गाइस, आप मुझे सपोर्ट करो या ना करो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, ठीक है। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। मैं ये चैनल आपके लिए ही रखूँगी और आपको बताने के लिए रखूँगी कि क्या क्या करना है ज़िंदगी में और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। मैंने जो किया पास्ट में, वो जो गलती थी, वो आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। मेरे भी फ्लॉज़ है और आपके भी फ्लॉज़ है, वो भी मुझे पता है, लेकिन फ्लॉज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि हम सारे कमियों से लेकर अच्छाई से लेकर हम आपसे प्यार करते हैं, और दूसरों के भी कमियों से लेकर अच्छाई से लेकर फिर भी हम उनसे उस पर्सन से प्यार करते हैं। और सेम गोज़ टू माय ट्विन एज वेल, ओके। मैं आपको एक पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या करना है। अगर आप ऑलरेडी टॉक्सिक फैमिली में हो और आप इंडिपेंडेंट हो, सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, ओके। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे जल्द ही जॉब लगने वाला है, तो मुझे पता नहीं कि मैं वीडियोस बना पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत फोकस्ड रहने वाली हूँ। क्योंकि पास्ट में जो मैंने वर्क किए थे वो ज़्यादातर तो टिक नहीं पाए, क्योंकि मैं बहुत बीमार गिर रही थी बार बार। मुझे एसी का बहुत प्रॉब्लम होता है, एसी से मैं एलर्जेटिक हूँ, सो मुझे बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ गाइस, तो मैं संभाल के करती हूँ जो भी है। सो इस बार मुझे विश लक करना कि ये जॉब मेरे हाथ से ना छूटे और मैं अच्छी तरह से इसमें ध्यान दे के, फोकस रह के मैं आगे बढ़ सकूँ, इंडिपेंडेंट होके मैं मूव ऑन हो सकूँ यहाँ से और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया है, ऑल द बेस्ट गाइस। आप लोगों ने बेस्ट स्टेप लिया है, आपने बेस्ट चॉइस किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और अब तक जो इसी मामले में फंसे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फटाफट से मैं बता देती हूँ, बिकॉज़ मुझे वीडियो एंड करना है और आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक पे भी मुझे बताना है, इधर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले अगर आपके पास एक बुक है तो बुक ही सही, अगर आपके पास नोटपैड है, नोटपैड ही सही, मोबाइल में भी आप नोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपकी फैमिली आपको बहुत ब्लेम करती है, आपको बात बात पे टॉन्ट मारती है, आपका भाई गाली देता है, मामी गाली देती है, पापा गाली देते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं आपके साथ नहीं होने देना चाहती। मेरी जो हालत हुई थी मेंटली, फिज़िकली, मैं वो आपके साथ नहीं होना देना चाहती। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल भी काम रहो। जब तक आप प्यार नहीं बन जाते, मैं यही कह रही हूँ, आपको प्यार बनना होगा, और प्यार बनने के लिए आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपको सेंसिटिव नहीं बनना है, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं बनना है, दिल से, हार्ट से, ठीक है। अगर आप सेंसिटिव हो गए तो फिर आप रोते रहोगे, अच्छा नहीं लगेगा ना, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स टू बी सेंसिटिव सो मच। आप बिल्कुल भी सेंसिटिव मत होना, स्ट्रॉन्ग बनो, कॉन्फिडेंस हो जाओ, अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो उसको बढ़ाओ, और फिर अगर सामने वाला आपको कुछ भी बोले ना, वो आपको नहीं चुभेगा, बिल्कुल नहीं चुभेगा। फिर वो कितना भी कठोर, कितना भी मतलब
नीच शब्द ही क्यों ना हो, आपको नहीं चुभेगा। जब कोई और आपको बोलता है आपको कुछ नहीं लगता है, राइट? वही समझो, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इसे इग्नोर करो। और ज़्यादातर आप अपने आप पे फोकस करो। पॉइंट 1, अपने आप पे फोकस करो। जो आपका मन करता है अच्छी चीज़ों में वो करो। आपको पढ़ाई करनी पढ़ाई करो, आपको ड्राइंग करनी, आपका जो भी हॉबी है जिसमें आपको मन लगता है, अच्छा लगता है, वो चीज़ करो। गाने सुनना है गाने सुनो, एयर प्लग्स लगाओ, लेकिन ज़्यादा नहीं कि आपके कान खराब हो जाए, ठीक है? पॉइंट 2, डोंट गिव रिएक्शन। आप उनको रिएक्शन मत दो। अगर वो आके फिर भी आपसे कोई रिएक्शन पाना चाहते हैं तो रिएक्शन मत दो। डोंट गिव एनी रिएक्शन इन, ओके? डोंट गिव एनी रिएक्शन। कुछ भी रिएक्ट मत करो, साइलेंट हो जाओ, अपना अपना काम करो। थर्ड पॉइंट, अगर वो बहुत ही टॉक्सिक है, आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसा तो इंडियन फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको मार रहे, पीट रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, घर में पिटाई हो रही है किसकी भी, आपके पास हक है बोलने का। आप बोलो कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या किया है मैंने, क्यों मार रहे हो, किस वजह से पिटाई हो रही है। हाँ, अगर आपने गलती की होगी तो आपकी पिटाई ज़रूर होगी, लेकिन बिना वजह ही बहुत अब्यूज़िव बिहेवियर हो रहा है आपके साथ, तो आप अगर बहुत ही इंटेंस अब्यूज़िव सिचुएशन में हो तो आपको कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है? अगर वो अब्यूज़ करते भी है लेकिन प्यार भी करते हैं, ऐसे सिचुएशन पे आप नो कांटेक्ट मोड पे चले जाओ, ओके? नो कांटेक्ट मोड पे चले जाओ। दिस वॉज अ थर्ड पॉइंट ऑफ नो कांटेक्ट मोड। फोर्थ पॉइंट है कि आप हीलिंग पे ध्यान दो। वो जो बोलते हैं उस पे ध्यान मत देना, उनका स्वभाव ही वैसा है, उनका बिहेवियर वैसा है, वो कभी नहीं बदलेंगे, चाहे आप कितना भी उनको बता दो, वो नहीं समझेंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ना, आप मेडिटेशन करो, जस्ट सी, मेडिटेशन करो, शांत बैठ के हाफ एन आवर तक मेडिटेशन करो, एक टाइम फिक्स करो और मेडिटेशन करो। एक म्यूज़िक लगाओ सूदिंग सा और आँख बंद करके बस भगवान का नाम लो, या फिर चुपचाप बैठ के बस मेडिटेशन करो। पीछे क्या आवाज़ चल रहा है, बैकग्राउंड वॉइस पे क्या चल रहा है, गाली गलौज जो भी है, चिल्ला पुकार, उसे इग्नोर करके, उस पे फोकस ना करके खुद पे फोकस करके आप हीलिंग पे ध्यान दो, आपके मेडिटेशन पे ध्यान दो। दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, कुछ कहते हैं कि बस तू खाना ही खाने आती है, बस तुम खाना ही खाने आते हो, बाकी का काम तो नहीं आता, राइट? मोस्टली गर्ल्स को बोला जाता है। और काम करो या ना करो फिर भी बोलते हैं, कुछ करो या फिर ना करो फिर भी बोलते हैं, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आप कुछ भी मत बोलो, यहाँ पे भी कुछ भी मत बोलो, क्योंकि आप जितना बोलेंगे वो सामने वाला और ज़्यादा करेगा, और आपके जो भी मतलब आप जितना बोलोगे आपके मॉम डैड उतना ही ज़्यादा बोलेंगे। बहस करने से कुछ नहीं होने वाला, आई स्वेयर, क्योंकि आप बहस करने जाओगे, आप चिल्लाने जाओगे, एनर्जी आपकी ड्रेन होने वाली, उनकी नहीं। हाई बीपी उनकी होने वाली है और आपकी नहीं। यू गॉट इट? तो ये मेरा फिफ्थ पॉइंट था कि आप
शांति से बैठो, अपना काम करो, आपकी जो ड्यूटी है, घर के काम है वो करो, वो भले फिर वो कुछ भी बोले, पसंद ना आए फिर भी करो, शिद्दत से काम करो, ठीक है। शिद्दत से काम किया, अपने कमरे में जाके चुपचाप से बैठो, आपका जो फ्री टाइम है वो स्पेंड करो, या फिर सो जाओ, या फिर काम पे जाओ, जो भी है। अगर जॉब है तो काम पे जाओ, उस पे फोकस करो। अगर आपके पास सैलरी अच्छा है तो आप घर पे सर्वेंट भी लगा सकते हो, अगर आपको घर का काम नहीं करना है तो। मम्मी को भी आपकी हेल्प हो जाएगी, डैड को भी हेल्प हो जाएगा, राइट। नहीं है तो आपको ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं समझती हूँ बेटा कि कैसे फील होता है। अगर मैं ये सब आपको शेयर कर रही हूँ तो आप ये समझ जाओ कि मेरे फैमिली में भी यही हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन पे मैंने बहुत ट्राई किया है हैंडल करना, लेकिन रोने के अलावा मुझे कुछ सोचा ही नहीं। और यही तो मैं कह रही हूँ, रोने से, धोने से, डिप्रेशन में जाने से हालत अपनी खराब होती, उनकी नहीं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। सो आप ध्यान दो अपना। आप बहुत बहुत प्रेशियस हो, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल हार्ट हो, आप बहुत अच्छे हो। क्यों र्यून करना है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पड़ के? ऐसे मामले में पड़ के आपका कुछ नहीं होगा, आप ही बीमार गिरोगे, आपका ही दिमाग खराब होगा, गुस्सा आपका बढ़ेगा। उनकी तो आदत है, आपको आदत करवा के लेनी है? नहीं ना। आपको उनके जैसे बनना है? नहीं ना। तो आपको करना होगा ये सब। आई नो इट्स हार्ड बट यू हैव टू डू इट, देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन। आपको सर्च करके भी नहीं मिलेगा। आप YouTube पे जाके सर्च करोगे, बहुत कम लोगों का सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वही करो। अगर वो चाहते कि बात करना है, ठीक है, नॉर्मली से बात करो, कुछ ज़्यादा रिएक्शन मत दो। बात करना है करो। अगर आपका किसी से मतलब बहस हो रहा है और बात ही नहीं हो रही दोनों में, तो ठीक है, जाने दो, अपना अपना काम करो। अगर ऑटोमेटिकली वो आते बात करते, बात करो, ठीक है। लेकिन ईगो मत रखना, प्यार आपके दिल में ज़रूर रहने देना, क्योंकि जब आप उनको ओपन प्यार दोगे, वो आपके ओपन प्यार को भी नहीं समझेंगे। जब तक राइट टाइम नहीं आता तब तक आप वही करो जो आपको सही लगता है। और जब आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, आप अपार्टमेंट ले लो, या फिर जो भी आप घर, लेकिन जो भी है आपका वो आप लेना चाहोगे, वहाँ पे आपको पेरेंट्स सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वो आपको मिस करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते ही है, नो मैटर व्हाट, तो दे लव्स यू। उनको चिंता होती है, आई नो कि वो दूर जाने के बाद ही चिंता होती, घर में रहने के बाद उनको कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर जाने के बाद उनको ज़रूर होता है कि मेरी बच्ची क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, खा रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, सोया कि नहीं, काम कर रहा है क्या नहीं, कितने पैसे कमाए, सब कुछ ठीक से कर रहा है, पैसे सबको दे तो नहीं रहा है, ठीक तो है, बीमार तो नहीं है, चिंता होती है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आराम से काम लो, बिल्कुल काम माइंड से, कॉन्फिडेंस होके, स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, और इन 5 टिप्स को फॉलो करके देखो। नहीं काम चलाना तो मुझे आके कमेंट्स में बता देना कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आप एम्पैथ हो, आपको समझ में आता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही। और मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगी
और वो एक प्यार से ही होगा, एक प्यार के ऊपर एक गाना होगा, छोटा सा प्यारा सा, वो मैं गाना चाहूँगी। ठीक है। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले से, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। सो दिस वॉज अ सॉन्ग। आई नो ये पुराना है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और आई होप आपको ये समझ में आया हो। और मैंने ज़्यादा ये वीडियो को लंबा नहीं किया है, इस बार इतना ही किया है जितना प्रीवियस वीडियो में था। अगर ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो आई एम सो सॉरी अगेन। तो मेरी बात को समझना, जो मैंने आपको आज कहा है, ये 5 टिप्स आप फॉलो करके देखो। ठीक है, अब ये 5 टिप्स फॉलो करके देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि बुक के बारे में बताया था, राइट। उस बुक में आप लिख सकते हो, आपका खुद का टाइम टेबल बना सकते हो। ऑलराइट। उसमें आप लिख सकते हो कि आपको लंच टाइम कब करना है, आपको मेडिटेशन कब करना है, आपका स्टडी कब करना है, आपको सोना कब है, काम कब करना है, वो सब आप नोट डाउन कर सकते हो। मेन पॉइंट्स उसमें डाल के फिर आप आगे वाले आपके काम कर सकते हो, फिर आपको इजी होगा। और इस पॉइंट्स पे आप ज़्यादा ध्यान देके, ऐसे समझो कि आप एक वर्क पे हो, एक काम पे हो और आप काम करते जा रहे हो, अपना खुद का काम कर रहे हो। जैसे अभी देखो, आप जब जॉब पे जाते हो, वहाँ पे कोई कुछ पूछता है कि यार क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा। हाँ, ऑब्वियसली वो मैनेजर है, वो तो पूछेगा ही, लेकिन दूसरे और कोई पूछते हैं नहीं। अपना काम से काम करते हैं सब लोग, राइट। वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वैसे ही घर पे वही करो आप। क्योंकि अगर आपको सच में बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले तो मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करूँ, उनको थैंक करो, उनके पैर पड़ो, उनसे प्यार करो, उनको ज़्यादा प्यार दो। ऐसे पेरेंट्स को जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। सो ये अगर 5-4 पॉइंट्स आप फॉलो करोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह से मैंने कहा कि अपना काम करो, टेंशन मत लेना। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक स्ट्रेस। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, प्यार बन जाओ, बी लव योर सेल्फ। मैं हमेशा कहती हूँ लव योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। ओके, that's it for today. Thank you so much for listening me once again, and I hope it's helping you, and I hope it's like motivating you, encouraging you, feeling very nice, peaceful after hearing this audio. I'm really glad it's helping you guys. Thanks for coming back to my channel and listening to my videos, supporting me throughout, and I love you guys. Take care, stay tuned, and wait for the next video. Bye bye. Tata.